ابھی آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے کہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال کی سزا سنا دی گئی ہے اور 1 لاکھ روپے جرمانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ثاقب سید سے مزید ڈیٹیلز لے لیتے ہیں۔ ثاقب، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جیسے کہ آج توشہ خانہ کیس کی سماعت کا آخری مراحل تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو جج ہیں احمد دلاور نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے توشہ خانہ کیس میں ناقابل سماعت ہونے سے متعلق درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ ملزم کے خلاف جرم ثابت ہوتا ہے۔ ملزم نے الیکشن کمیشن میں جھوٹی تفصیلات جمع کروائی۔ ملزم کرپٹ پریکٹسز کے مرتب پائے گئے ہیں۔ عدالت نے مزید کہا کہ ملزم نے جان بوجھ کر الیکشن کمیشن میں جھوٹی تفصیلات دی۔ ملزم کو الیکشن ایکٹ کی سیکشن 174 کے تحت 3 سال کی قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ ملزم آج عدالت میں پیش نہیں ہے۔ فیصلے کی کاپی جو ہے عاجز صاحبات کو عمل درآمد کے لیے بھجوائی گئی ہے۔ جیسے کہ آج اہم دن تھا، آخری دن تھا، آج کے دن 3 وقفے کیے گئے، 8:30، 9:30 اور 10:30۔ 10:30 کے بعد جب 12 بجے عدالت دوبارہ شروع ہوئی تو جج نے پوچھا کہ وکیل کہاں ہیں ملزم کے، وہ بھی حاضر نہیں ہوئے۔ دوسری جانب جو وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ 11:30 بجے ہم نے بندہ بھیجا احتساب عدالت میں ان کے وکیل موجود نہیں تھے۔ جیسے کہ اہم فیصلہ سامنے آیا کہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ان کو 3 سال کی سزا جو ہے 174 سیکشن کے تحت دی گئی ہے۔ جی ثاقب، اپڈیٹ کیجیے گا، عدالت کی جانب سے کتنا جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو؟ جی بالکل، جیسے کہ آپ کو بتا چلوں کہ آج اہم سماعت ہوئی ہے۔ جیسے کہ 3 سال کی سزا سنائی گئی ہے، جس کے بعد نااہل بھی ہو سکتا ہے۔ تفصیلات جیسے کہ ابھی سامنے آ رہی ہے۔ جیسے کہ عدالت نے کہا ملزم نے الیکشن کمیشن میں جھوٹی تفصیلات جمع کروائی۔ ملزم کرپٹ پریکٹسز کے مرتب پائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ملزم نے جان بوجھ کر الیکشن کمیشن میں جھوٹی تفصیلات جمع کروائی، اور جیسے کہ ملزم کو الیکشن ایکٹ کی سیکشن 174 کے تحت 3 سال کی قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ ملزم آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ جیسے کہ کل جو ہے مکمل بار بتایا گیا کہ ملزم جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے ان کو آج ذاتی حیثیت میں وہ پیش ہوں، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے، یہاں تک کہ ان کے وکیل جس نے دلائل دینے تھے خواجہ حارث، وہ بھی پیش نہیں ہوئے۔ خواجہ حارث جو ہے وہ تقریباً جو ہے جیسے کہ 12 بجے فیصلے محفوظ کیا، 12 بج کے تقریباً 22 منٹ پہ خواجہ حارث جو ہے وہ یہاں پہ پیش ہوئے۔ پیش ہونے کے بعد اس نے درخواست دینے کی کوشش کی، لیکن فیصلہ محفوظ تھا۔ عدالت نے اپنا جو فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوسری جانب عدالت نے جو فیصلے کی کاپی ہے وہ آئی جی اسلام آباد کو عمل درآمد کے لیے بھجوائی ہے۔ جی ثاقب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے، جس کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کے کیس ناقابل سماعت ہونے سے متعلق درخواست بھی مسترد ہو گئی ہے۔ جج ہمایوں دلاور کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں کہ ملزم کے خلاف جرم ثابت ہوتا ہے۔ ملزم نے الیکشن کمیشن میں جھوٹی تفصیلات جمع کرائی ہیں۔ ملزم کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ ملزم نے الیکشن کمیشن میں جھوٹی تفصیلات جمع کرائیں۔ ملزم نے جان بوجھ کر الیکشن کمیشن میں جھوٹی تفصیلات دی ہیں۔ ملزم کو الیکشن ایکٹ کی سیکشن 174 کے تحت 3 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال کی سزا سنا دی ہے، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اگر جرمانہ ادا نہ کیا گیا تو 6 ماہ مزید قید کاٹنا ہوگی۔ سیشن کورٹ اسلام آباد کی جانب سے فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ جج ہمایوں دلاور خان نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ عدالت نے پی ٹی آئی چیئرمین کے وارنٹ بھی جاری کر دیے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی کیس ناقابل سماعت ہونے سے متعلق درخواست بھی مسترد ہو گئی ہے۔ ملزم کو الیکشن ایکٹ کی سیکشن 174 کے تحت 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اور ملزم کے خلاف جرم ثابت ہوتا ہے۔ ملزم نے الیکشن کمیشن میں جھوٹی تفصیلات جمع کرائی ہیں۔ اسلام آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس ناقابل سماعت ہونے سے متعلق درخواست بھی مسترد ہو گئی ہے۔ جج ہمایوں دلاور خان نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ جج کے ریمارکس ہے کہ ملزم کے خلاف جرم ثابت ہوتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس ناقابل سماعت ہونے سے متعلق درخواست بھی مسترد ہو گئی ہے۔
अदालत ने कहा है कि मुलजिम ने इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात जमा कराई है। मुलजिम करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए हैं। मुलजिम ने जानबूझकर इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात दी है। मुलजिम को इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 174 के तहत 3 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया है। इसी बारे में मजीद डिटेल्स लेंगे साकिब सैयद से। जी साकिब। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है और 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और जुर्माना अदा ना करने पर मज़ीद 6 माह कैद काटना होगी। इसी बारे में मज़ीद डिटेल्स लेंगे साकिब सैयद से। साकिब, अपडेट कीजिएगा। इस्लामाबाद की ज़िले अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत होने से मुतालिक दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिए गए हैं। जज हुमायूं दिलावर ने महफूज शुदा फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि मुलजिम के खिलाफ जुर्म साबित होता है। मुलजिम ने इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात जमा कराई हैं। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की जानिब से तोशाखाना केस का फैसला सुना दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत होने से मुतालिक दरख्वास्त भी मुस्तरद हो गई है। अदालत ने पीटीआई चेयरमैन के वारंट भी जारी कर दिए हैं। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल करार। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल की सज़ा सुनाई गई है और 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। अदालत की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं कि मुलजिम ने इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात जमा कराई हैं। मुलजिम करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए और मुलजिम ने इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात दी हैं। मुलजिम को इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 174 के तहत 3 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। अदालत ने पीटीआई चेयरमैन के वारंट भी जारी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद की ज़िले अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत होने से मुतालिक दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल की सज़ा और इसी केस में चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिए गए हैं। मुलजिम के खिलाफ जुर्म साबित होता है। अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि मुलजिम ने इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात जमा कराई गई हैं और मुलजिम करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए हैं। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया है जिसके मुताबिक अदालत ने पीटीआई चेयरमैन के वारंट भी जारी कर दिए हैं और इस केस में 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिए गए हैं। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि मुलजिम के खिलाफ जुर्म साबित होता है। मुलजिम करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत होने से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने यह फैसला सुना दिया है और चेयरमैन पीटीआई को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है और सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की जानिब से आज 12:30 बजे का वक्त दिया गया था और जज हुमायूं दिलावर खान की जानिब से ये कहा गया था कि मुलजिम के वकील पेश हों। अगर वो पेश ना हुए तो 12:30 बजे फ़ैसला सुना दिया जाएगा और अब ये फ़ैसला सामने आया है। चेयरमैन पीटीआई को 3 साल के लिए सज़ा दी गई है और 1 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। साकिब सैयद से मज़ीद डिटेल्स लेते हैं। साकिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि तोशाखाना का आज बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो यहाँ पे दरख्वास्त दायर की थी, जैसे कि चेयरमैन पीटीआई को जो है 3 साल की सजा सुना दी गई है जिसके तहत 5 साल के लिए इलेक्शन में वो जो इलेक्शन नहीं लड़ सके वो नाअहल हो चुके हैं। जैसे कि तफसीलात के मुताबिक अदालत ने ये भी कहा कि मुलजिम आज अदालत में पेश नहीं हुए। फैसले की कॉपी जो है वो आईजी इस्लामाबाद को भेज दी गई है और इस पर अमल दरामद किया जाए और साथ साथ ये भी कहा कि अगर जो जुर्माना जैसे कि 3 साल की कैद 3 साल सजा के साथ साथ 1 लाख का जुर्माना भी किया है। अगर जुर्माना टाइम पे जमा नहीं किया गया तो 6 महीने की सजा मजीद बढ़ाई जा सकती है। जैसे कि तफसीलात में ये कहा गया है कि अदालत के मुताबिक मुलजिम ने झूठा बयान हल्फी जमा करवाया, मुलजिम ने झूठा डिक्लेरेशन दिया। चेयरमैन पीटीआई आज झूठे एहसास जाहिर करने का इल्जाम साबित होता है।
जैसे कि अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 3 साल की सजा सुना दी गई है। अदालत ने 3 साल कैद और 1 लाख का जुर्माना सुना दिया गया है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। जुर्माना जमा न करवाने पर 6 माह की मजीद कैद की सजा होगी और अदालत के मुताबिक आज इस्लामाबाद को वारंट गिरफ्तारी पर तामील का हुक्म भी दे दिया गया है। आज बड़ा जो है फैसला सामने आया है। चेयरमैन पीटीआई को 3 साल की कैद और साथ 1 लाख रुपए जुर्माना भी दिया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह की सजा है वो मजीद बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ साथ आईजी इस्लामाबाद को जो है वो उसकी फैसले की कॉपी भिजवा दी गई है और कहा गया है कि अगर चेयरमैन अमल दरामद किया जाए और वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी गई है। जी, इस्लामाबाद की अदालत ने तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को 3 साल कैद की सजा सुना दी है। चेयरमैन पीटीआई पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। फैसले में कहा गया है कि जुर्माना अदा न करने पर 6 माह मजीद कैद काटना होगी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने यह फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत के जज हुमायूं दिलावर खान ने तोशाखाना केस की समाअत की है, जिसमें अदालत ने आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। साकिब सैयद से मज़ीद डिटेल्स ले लेते हैं। साकिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि जो इस्लामाबाद सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज बड़ा फैसला सामने आया है। चेयरमैन पीटीआई जो तोशाखाना केस जो ज़ेरे इल्तवा था इस कोर्ट में जिस केस की समाअत जो जज हैं हमें दिलावर कर रहे थे, आज जैसे कि 12:30 बजे फैसला महफूज किया था। जज ने कहा कि मैं 12:30 बजे जो है महफूज फैसला सुनाऊँगा। फैसले के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को 3 साल की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अदालत में मजीद कहा गया है कि अगर जुर्माना जो 1 लाख रुपए है वो जमा नहीं किया गया तो 6 माह की मजीद कैद हो सकती है। तफसीलात के मुताबिक आपको बता चलूँ कि जज अहमद दिलावर ने मजीद कहा कि जैसे कि इनकी जो डिक्लेरेशन है जो उस पर इल्ज़ामात है वो साबित हो चुके हैं। उसने अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।